press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Jugair. Welcome to the first chapter of 9th Maharashtra Board Geography. The name of the chapter is Distributional Maps. So in this chapter basically we will study about different types of maps and what is the use of those maps. This is very important chapter. This type of maps are also in 10th standard and you have to answer the questions related based on this maps. So map will be given and some questions will be given. We have some examples here. Yes. Here are some examples. This is a map and questions are given on the basis based on this map. So you have to search the information in the map and you have to answer the questions. So this is very important. It is coming in board exams also in 10th standard. This type of question is having around 4 to 5 marks weightage. So this is very important. If you understand these maps in this year in 9th standard, then it will be very easy for you to understand in 10th standard. Learn this in 9th standard so that it will be beneficial for you. So I will be teaching in both English and Hindi for your better understanding. So let us begin with the chapter. So you have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental science environmental studies, EVS and geography. So you must be knowing about maps. Basically what information map is having. So it is having information about different places. Suppose if we talk about map of India, then if you talk about political map of India, so there we are having different we have information about different states of India, then different cities. There are different types of maps like physical maps. So we are having information like rivers, mountains. Okay, so आपने देखा होगा कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में आपको फ़र्क समझ में आता होगा. फिजिकल मैप में क्या होता है कि वो लैंड फॉर्म्स दिखाया जाता है. वहाँ कहाँ रिवर्स है, कहाँ से माउंटेन्स कहाँ है, प्लाटूज कहाँ है, वो सब आपको फिजिकल मैप में दिखेगा. पॉलिटिकल मैप में क्या दिखता है, स्टेट कौन सा है, स्टेट कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसके बाद सिटीज़ कौन सी है, कैपिटल कौन सा है, स्टेट का कैपिटल कौन सा है, ये सब आपको पॉलिटिकल मैप में. अभी थोड़े अलग टाइप के मैप्स है, ठीक है. So the main aim of the map is to show the location of a place and distribution of variables. So इतना तक तो आपको पता होगा कि कोई जगह का लोकेशन आपको मैप से समझ में आता है. दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर सर्टेन थिंग्स लाइक सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. अभी महाराष्ट्र स्टेट का पॉपुलेशन अपने को दिखाना है मैप में कि कौन सी जगह पे कितने लोग रहते हैं, कौन सी जगह पे ज़्यादा है. तो उसके लिए हम अलग अलग तरीका यूज़ करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स मीन्स अ पर्टिकुलर थिंग लाइक पॉपुलेशन ऑफ पीपल और पॉपुलेशन ऑफ कैटल. ये एक वेरिएबल है. टेम्परेचर दिखाना है हमें, या क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाना है, रेनफॉल कैसा है महाराष्ट्र में, ये क्या है, सब वेरिएबल्स है. तो ये वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हमें अलग टाइप के मैप्स की जरूरत होती है. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस. सो सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स. सच मैप्स आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप्स. बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अबाउट थीमेटिक मैप्स नाउ. Through such maps, distribution of various variables in a region is shown. Distribution of a temperature, rainfall, population, etc. is shown in the map according to the data of these variables. Data अपने पास होता है कि कितना population है, उस हिसाब से हम मैप में दिखाते हैं. ठीक है, so ये सब बात आगे देखेंगे. These maps are useful to explain the distribution of these variables in a region. Such maps easily bring out the pattern of distribution. To draw distributional maps, we need statistical data of the variables. Statistical data मतलब क्या, हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए. जैसे पॉपुलेशन अगर आप बात कर रहे हैं, so कितना पॉपुलेशन कहाँ रहता है, ये पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए. पूरा जैसे अपनी कंट्री में सेंसस होता है. सेंसस मतलब क्या होता है, लोगों का काउंटिंग होता है हर 10 साल में. ठीक है, 2021 में होने वाला था, लेकिन आई थिंक कोविड की वजह से नहीं होगा, आगे जाएगा वो. सो स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, पूरा हमें कैलकुलेशन करके डेटा निकालना पड़ता है. देन वो जो वेरिएबल्स है, जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन का पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए. रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कौन से एरिया में कितना रेनफॉल होता है. ठीक है, पॉपुलेशन, टेम्परेचर का भी सेम हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है. सो वी शुड हैव स्टैटिस्टिकल डेटा विद अस. स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब क्या, टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ये सब वेरिएबल्स है. डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन द 3 फॉलोइंग वेज इन द मैप. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स. डॉट मेथड, then choropleth method and isopleth method. We will be studying about these 3 types of maps. ये 3 अलग अलग टाइप के मैप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 10th स्टैंडर्ड में भी, जैसे मैंने बोला, ये आने वाला है. तो ये अभी आपको समझ में आएगा तो बहुत ईजी होगा 10th में. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डॉट मेथड.
डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा, अभी ये पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन दिखाने के लिए डॉट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल। कि हमें क्या दिखाना है कि इंडिया में पॉपुलेशन अपने को पता है कि कितना है, तो वो कौन से स्टेट में कितना है उसका हमें एक एक पर्सन को आप मैप में नहीं डिपिक्ट कर सकते। अब सपोज एक जगह का पॉपुलेशन है 10 लाख, तो 10 लाख चीज़ें नहीं दिखा सकते आप वो मैप में, उतना जगह तो नहीं रहता है मैप में। तो क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यू देंगे, एक डॉट बनाएंगे, उस डॉट को कुछ वैल्यू देंगे। जैसे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, मैं आपको एज्यूम करने बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 1000, ठीक है, दिस इज अजम्पशन, इतना नहीं है पॉपुलेशन, सिर्फ एज्यूम करने बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 1000, ठीक है। तो अभी हम 1000 डॉट नहीं बना सकते मैप में 1000 लोग दिखाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 10 डॉट बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे कि एक डॉट का वैल्यू है 100, मतलब एक 10 डॉट ही मैप में दिखेगा, लेकिन बाजू में लिखेंगे कि इंडेक्स में लिखेंगे कि एक जो डॉट बनाया हमने उसका वैल्यू है 100। तो हम पता लगा सकते हैं कि मैप में और इंडेक्स में देख के कि चलो 10 डॉट है और एक डॉट का वैल्यू है 100, सो 100 इंटू 10 इज 1000, ठीक है। ऐसे डॉट मेथड यूज होता है। Dot map is prepared using statistical data. While preparing dot map, only data gathered through counting is used. So counting करना पड़ेगा हमें. The way a variable is distributed throughout the region, dots are used to show the distribution on the map. For example, population of a region, distribution of cattle. Cattle कितना है कंट्री में, कितना है स्टेट में, वो भी दिखाने के लिए डॉट मेथड यूज हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कैसे डॉट यूज करते हैं, कितना वैल्यू होता है, डॉट कैसे बनाना पड़ता है, कैसे बनाएंगे, ये सब देखेंगे आगे। टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड, द वैल्यू ऑफ अ डॉट इज टू बी डिटरमाइंड, कि जो भी डॉट है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए और डॉट का साइज भी सेम होना चाहिए, ताकि हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र में 100,000 लोग है, 1000 है, हम क्या बनाएंगे, 10 डॉट बनाएंगे, 10 डॉट का वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि एक डॉट का वैल्यू है 100, ठीक है, और वो जो डॉट बनाएंगे हम उसका साइज भी सेम होना चाहिए, सो साइज ऑफ द डॉट शुड बी सेम। सो या सो to do that, lowest and the highest values of the given variable in the region is taken into consideration. Suppose I told you that the population of Maharashtra is 1000, तो हम क्या करेंगे, 0 लोवेस्ट है, 1000 हाईएस्ट है। तो इसमें मैंने बोला आपको कि हमें 10 डॉट बनाना है। ऐसे हम 100 डॉट भी बना सकते हैं, लेकिन 100 डॉट को उसमें दिखाना डिफिकल्ट होता है मैप में। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसको एक इजीली हम बता सकते हैं वैसा एक वैल्यू चूज करेंगे। जैसे मैंने 100 चूज किया था कि एक डॉट मतलब 100, तो इजीली हम 10 डॉट दिखा सकते हैं। टू डू दैट, लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल इन द रीजन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड ऑल्सो। सो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डॉट डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला था 1000 के लिए हमने 10 डॉट बनाए थे। ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ द मैप, the number of dots to be given for the value of variable in each sub administrative unit needs to be decided first. तो अभी ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब क्या है, देखो अभी जैसे ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है, अमरावती इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें तालुकाज है, जैसे ये आचलपुर तालुका है, वरुड तालुका है, ये अंजनगांव सुरजी तालुका है। तो ये जो बड़ा रीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर छोटे छोटे तालुकाज है, दिस तालुकाज और सब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो हर एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में, जैसे ये मैप अगर आप देखते हो तो इन्होंने क्या किया है, ये जो सर्कल है बड़ा, ठीक है, तो सर्कल का वैल्यू दिया है 5 लाख, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटा डॉट है, डॉट रूरल पॉपुलेशन दिखाने के लिए डॉट यूज करते हैं, गांव का साइड का पॉपुलेशन दिखाने के लिए वी आर यूजिंग डॉट, ओके। फॉर शोइंग द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज और सिटीज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सर्कल्स। सो हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द सर्कल एंड इट इज गिवन द we have given one circle here and how much is the value of the circle, it is given in the index. So index is very very important, ठीक है। सो यहाँ अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अमरावती में, अमरावती तालुका में, ये अमरावती पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक तालुका है उसका नाम भी अमरावती है, तो ये अमरावती तालुका में कितने अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं, तो आंसर क्या आएगा 5 लाख, क्योंकि यहाँ एक ही डॉट बना है, तो एक डॉट का वैल्यू है 5 लाख। आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, ये जो डॉट का, ये जो सर्कल का साइज है उतना ही इंडेक्स में दिया है हमने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ भी अर्बन पॉपुलेशन भी है, रूरल पॉपुलेशन भी है, तो एक डॉट का वैल्यू हमने दिया है 10,000। तो अगर मुझे यहाँ देख बताना है कि ये जो तालुका दिया है यहाँ, इसका पॉपुलेशन कितना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 इंटू 10,000, 1,20,000, इतना इसका
यहाँ भी ये दिया हुआ है, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, तो आप काउंट करो 15 होता है, आप काउंट करो 15 होगा तो 15 इंटू 10,000 1,50,000 इतना इसका पॉपुलेशन। ऐसे क्या करना है, हमें डॉट का जो वैल्यू दिया है उसे काउंट करना है, जितने डॉट है कितने डॉट है काउंट करना है और उसको यहाँ जो वैल्यू दिया है उसे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी कैन गेट द आंसर दैट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस तालुका। ठीक है, ये डॉट मेथड में ऐसा यूज़ होता है। जैसे ये यहाँ भी दिखता है आपको वरुड में भी अर्बन पॉपुलेशन है, तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए हमने सर्कल दिया है, तो यहाँ सर्कल है, इसका वैल्यू कितना है देखो आप देख सकते हो 50,000। हर एक जो सर्कल दिया है उसका यूनिक वैल्यू है। सपोज यहाँ हमें दिखाना था, सपोज यहाँ 5 लाख की जगह 10 लाख अगर होता था अर्बन पॉपुलेशन, तो हम क्या करते थे, यहाँ 2 ऐसे सर्कल बनाते थे ताकि हम बता सकते हैं इसका 5 लाख है, इसका 5 लाख है, सो है 10 लाख। Okay, this is the way dot method is used to show the population. Here we have the variable here is population, distribution of population we have shown. यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो कितने डॉट्स है, तो आपको क्या करना है, एक डॉट का वैल्यू है 10,000, सो ये जितने भी डॉट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो उसका आंसर आ जाएगा कि कितने लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं। हम अभी 10,000 लोग अगर रहते तो पूरा 10,000 डॉट नहीं बना सकते, इसलिए हमने क्या किया, एक डॉट बनाया, हर एक डॉट का साइज देखो आप सेम है। ठीक है, ये सर्कल भी बनाया है, उसका साइज देखो ये यूनिक, यहाँ भी साइज उतना है, यहाँ भी, ये हर एक सर्कल का साइज सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि हमने उसको अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, या सो द नंबर ऑफ डॉट्स, ये सब मैंने बता दिया आपको। सो साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब क्या जो डॉट है उसका साइज सेम होना चाहिए, सभी डॉट का साइज सेम होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिजियोग्राफी, अभी फिजियोग्राफी क्या होता है, सपोज मैंने मार्क किया डॉट यहाँ और यहाँ से एक रिवर जाता है, तो ये करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, तो हमसे नहीं बता सकते कि जहाँ रिवर जाता है ये हमें पता होना चाहिए कि रिवर कहाँ होता है, रिवर जहाँ जाता है या जहाँ माउंटेन है उसके ऊपर हम डॉट नहीं बना सकते, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ है। मतलब देखो यहाँ डॉट नहीं दिया है, यहाँ इन्होंने कुछ दिया नहीं है, उसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ होगा, माउंटेन होगा या फिर कुछ रिवर होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ डॉट नहीं दिया है। जहाँ लोग रहते हैं वहीं हमको डॉट बनाना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमको कि कहाँ फिजियोग्राफी उसका कैसा है, रिवर है क्या वहाँ या फिर माउंटेन्स है क्या। वाटर सोर्सेस मतलब रिवर, ट्रांसपोर्ट या डैम है, कहीं डैम के ऊपर डॉट नहीं बना सकते हो कि यहाँ बता नहीं सकते हो कि 10 लाख लोग रहते हैं, पता चला कि वहाँ डॉट पे यहाँ डैम है। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे रेलवेज है, रोडवेज है, ये ध्यान रख के बनाना पड़ता है। एक्सेट्रा फॉर अ रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग द डॉट्स ऑन द मैप। सो डॉट्स बताने के, डॉट्स जहाँ हम प्लेस करते हैं तो देखना पड़ता है कि वहाँ रिवर है क्या, वहाँ माउंटेन्स है क्या। While showing population distribution, rural population is shown by dots and circles used to show urban population. You must have understood. Rural population दिखाने के लिए हम dot use करते हैं और circle urban population के लिए. Dot method is most suitable for that variable which is freely scattered across the region. The population distribution map of Amaravati district is given. Answer the given questions by reading the distribution map shown by the dot method. What is the population of Amaravati town? अभी अमरावती टाउन, ये जो अमरावती है इसका पॉपुलेशन कितना है, अभी ये आपको काउंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता चला कि यहाँ अर्बन एरियाज में 5 लाख लोग रहते हैं और हर एक जितना भी डॉट है वो डॉट को काउंट करो, ये जो रूरल एरियाज वाला डॉट है उसको काउंट करो और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो जितना भी वैल्यू आता है उसको ऐड करो 5 लाख से, सो दैट यू कैन गेट द आंसर दैट दिस मच इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती। ये आप करके देख सकते हो, आपके पास टाइम है तो। ठीक है, सो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन, ये आपको ऐसे काउंट करना है। नेम द प्लेसेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। 1 लाख से किसका ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये कौन सी जगह है वो आपको काउंट करना है। जैसे देखो आप काउंट करो, ये तालुका काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 9, तो इस एरिया का ये जो तालुका है उसका पॉपुलेशन है 90,000, सो ये 1 लाख नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका 1 लाख है। तो ऐसे आप काउंट करो और उसका आंसर निकालो कि कौन सी जगह पे 1 लाख नहीं है। ठीक है, ये तालुका का नाम यहाँ दिया हुआ है सब, चिकलधारा यहाँ देखो आपको दिखेगा, ये बाद में बात करेंगे ये मैप का कौन सा टाइप का मैप है, लेकिन आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अमरावती में तो 1 लाख से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 5 लाख तो अर्बन पॉपुलेशन ही है, यहाँ भी उतना ही है। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हो। ओके, सो विच पार्ट ऑफ मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। स्पार्स मतलब क्या, कहाँ कम लोग है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ डॉट कम है उसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो इस एरिया में पॉपुलेशन कम है, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इस एरिया में ये जो तालुका है जैसे चिकलधारा तालुका है वहाँ पॉपुलेशन कम है क्योंकि यहाँ डॉट्स कम है। डॉट्स कम मतलब लोग कम। ओके, देन yeah, this is about dot method. I hope you have understood about dot method
कि पता चल गया होगा कि डॉट कैसे यूज़ करते हैं, और प्लेस करने के टाइम डॉट जब भी प्लेस करते हैं तभी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ कोई रिवर या कोई माउंटेन ये सब नहीं है, और तो हर एक डॉट का वैल्यू यूनिक होना चाहिए, ठीक, और डॉट का साइज़ भी सेम होना चाहिए। हमें वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। कैसे वैल्यू असाइन करेंगे कि सबसे ज़्यादा, अभी यहाँ सपोज यहाँ पता चला कि हमें 90,000 लोग रहते हैं, इसलिए हमने उसको 9 डॉट्स बनाया, ठीक है। यहाँ अगर 9 लाख रहते तो ये डॉट का साइज, ये डॉट का वैल्यू भी बढ़ जाता था, मतलब हमें बहुत सारे डॉट्स बनाने पड़ते थे। तो ये पूरा कंसिडर करना पड़ता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी कंसिडर करना पड़ता है, पूरे तालुकास का भी कंसिडर करना पड़ता है। ओके, देन देयर इज वन मोर मेथड, दैट इज क्लोरोप्रेथ मेथड। दिस इज क्लोरोप्रेथ मेथड। तो ये क्या करेंगे, हम कलर यूज करेंगे और कलर का शेड ज़्यादा या कम करेंगे। वैल्यू ज़्यादा तो कलर का शेड डार्क होगा, वैल्यू कम तो कलर का शेड थोड़ा लाइट होगा, ठीक है। जैसे ये सेम मैप है, सेम मैप में हमें पता चला कि यह औरंगाबाद और अमरावती जो तालुका है, अमरावती टाउन है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये जो है आचलपुर है, उसके बाद अंजनगांव सुरजी है, वरुड़ है। तो ये क्या करेंगे हम, इसको सबसे ज़्यादा डार्क कलर होगा क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगा तो कलर का शेड भी कम कम होते जाएगा। तो यहाँ आपको दिखेगा जहाँ अमरावती है सबसे ज़्यादा डार्क है, उसके बाद आचलपुर है, उसके बाद अंजनगांव सुरजी है, वरुड़ है, धरनी है, ठीक है। ये हर एक का हमने यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। डेंसिटी इंडेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ देखा था हमने वैल्यू एग्जैक्ट कितने लोग रहते हैं, ठीक है। जहाँ जैसे मैंने बोला था डॉट को काउंट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है हमने। अभी इस टाइप के मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि कितने, जो डॉट मेथड में एग्जैक्ट कितने लोग रहते हैं वो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट कितना वेरिएबल्स है वो निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन कितना है वो निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, इसका नाम देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कितने पर स्क्वायर मीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, सपोज ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में। तो हमने देखा कि 400 लोग रहते हैं पर स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर बनाया और उसके अंदर हमने देखा कितने लोग रहते हैं। मतलब क्या करना है आपको, डिवीजन करना पड़ता है। तो हमें पता चला कि चलो जहाँ अमरावती में 400 से ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो हर एक शेड को हमने वैल्यू दिया हुआ है कलर के हिसाब से। ओके, सो वी हैव यूज्ड दिस टिंट्स। टिंट्स आर बेसिकली द शेड्स ऑफ द कलर, सो वी हैव यूज्ड दिस कलर। तो ये कलर अमरावती के लिए सबसे डार्क क्यों है, क्योंकि अमरावती में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पॉपुलेशन कम है, एग्जाम्पल चिकलदारा, चिकलदारा में सबसे लाइटेस्ट कलर हमने यूज़ किया, सबसे लाइट, बिकॉज what is the reason? The reason is the population is very very less in Chikaldara. Also this states like this talukas like Tiusa, Damangaon railway, Chandur railway. Okay, you can see that color is light, but सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ है, चिकलदारा में, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कितना है 100, लेस देन 100, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 से भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब माउंटेन्स है, ठीक है, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। अमरावती में थोड़ा टाउन है, वहाँ डेवलप्ड है, तो यहाँ आपको ज़्यादा दिखेंगे लोग। सेम इज विद आचलपुर, उसके बाद अंजनगांव सुरजी है, ठीक है। धरनी में थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं, वरुड़ में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब देखोगे तो आप कम है, ठीक है। क्लोरोपेथ मेथड, इन दिस मैप्स द डेटा रिगार्डिंग वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो आपने देखा कैसे शेड यूज़ करते हैं हम, टिंट्स यूज़ करते हैं। While making such maps, the data used for different variable is obtained through various processes such as measurement, surveying, etc. जैसे हमें कुछ भी देखो, जैसे मैंने पॉपुलेशन का भी बात किया, तो पॉपुलेशन कितना है जानने के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है, ठीक है, मेजर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कितना है। इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू अ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द रीजन। यहाँ हमने देखा था दो वैल्यू दिया था, हमने सर्कल भी यूज़ किया था, डॉट भी यूज़ किया था। यहाँ हमने क्या किया, एक ही वैल्यू दिया लेकिन उसका शेड कम किया। जैसे वैल्यू कम हुआ तो हमने शेड कम किया उसका, जैसे ज़्यादा था तो उसका डार्क रखा हमने। तो ओनली वन वैल्यू इज गिवन। ओके, सो द स्मॉलेस्ट in this method only one value is given to a one sub administrative unit in a region. तो जैसे ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जैसे ये एक तालुका है, मैंने पहले ही बताया आपको, ये बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ जो गवर्नमेंट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट होता है, जिला परिषद होता है, वैसे ही एक छोटे से तालुका में भी गवर्नमेंट होता है, जैसे उसको पंचायत समिति वगैरह बोलते हैं हम। तो तालुका क्या है, एक छोटा सा सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ऐसे छोटे छोटे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, जिला, ठीक है, छोटा है तालुका।
सो हर एक तालुका का आपने देखा जाएगा कि सेम इन्होंने पूरे चिकलधारा के लिए सेम कलर यूज़ किया है, मतलब यहाँ आधा आधा नहीं किया हुआ है, एक ही है। अमरावती के लिए सेम शेड यूज़ किया है। मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ कि while making such map, data used for different variable is obtained through various processes. In this method, only one value is given to one sub administrative unit in the region. तो एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक तालुका को हमने एक ही वैल्यू दिया है, एक ही शेड यूज़ करना है, दो दो शेड यूज़ नहीं कर सकते उसमें। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा ऑफ द वेरिएबल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये कलर जब भी करते हैं हम तभी देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, सबसे कम वैल्यू कौन सा है, उस हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है, शेड यूज़ करना पड़ता है। सो द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये 5 to 7 क्लास बनाते हैं हम, जैसे हमने देखा था 5 to 7 टाइप्स के। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 टाइप के हमने कलर यूज़ किए, ठीक है। शेड कलर सेम है, सॉरी कलर एक ही है, उसका शेड अलग अलग यूज़ किया हुआ है। ईच क्लास इज असाइंड टिंट ऑफ अ सेम कलर और ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। यहाँ कलर चल रहा था, यहाँ हमने देखा ब्लैक एंड वाइट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ देखो आपको गैप कम दिखेगा दो लाइन्स के बीच में, जहाँ कम है तो वहाँ गैप आपको ज़्यादा दिख रहा है। सेम पैटर्न यूज़ किया है, सेम थिंग यूज़ किया है यहाँ कलर्स में। सेम हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ ब्लैक एंड वाइट पैटर्न बना के। द शेड्स ऑफ द पैटर्न बिकम डार्कर विद इंक्रीजिंग वैल्यू। सो जहाँ वैल्यू ज़्यादा होगा तो वहाँ शेड ज़्यादा होगा, उसका कलर भी डार्क हो रहा है, और यहाँ देखो आप शेड भी ज़्यादा हो रहा है, या फिर उसका गैप कम होते जा रहा है लाइन्स के बीच में। या सो द शेड्स ऑफ द पैटर्न बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली ऑन द मैप इन द गिवन क्लासिफिकेशन। तो ये हमने देखा 1.2a 1.2b मैंने आपको बताया, ये 1.2b। यहाँ गलती से आइसोप्लेथ मैप लिखा है, ये आइसोप्लेथ मैप नहीं है, ये क्लोरोप्लेथ मैप है, ठीक है। आपके बुक में शायद यहाँ क्लोरोप्लेथ लिखा होगा, लेकिन ये आइसोप्लेथ मैप नहीं है, क्लोरोप्लेथ मैप है। ये गलती से PDF जो अवेलेबल है बोर्ड वेबसाइट पे, उसमें यहाँ गलत है। तो दिस इज क्लोरोप्लेथ मैप, दिस इज नॉट आइसोप्लेथ मैप। Yeah, I have shown you 1.2a, this is 1.2a and 1.2b. Okay, so the population density maps of Amravati district using color shades and black and white pattern are shown. Read any one map in detail and answer the following questions. Name the talukas having population density between 301 and 400. 301 और 400 कौन सा है? देखो 301 400, अभी ये कलर हमको ढूंढना है। अमरावती तो नहीं हो सकता क्योंकि अमरावती को ये 400 है, ठीक है। अमरावती और आंचलपुर का कलर सेम लग रहा है, तो हमें क्या है, आंजनगांव सुरजी आंसर आ रहा है, आंजनगांव सुरजी आंसर आ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये जो शेड दिया है ये अमरावती और आंचलपुर के लिए मोर देन 400। 300 to 400 किसके लिए यूज़ किया है? एक तो है आंजनगांव सुरजी, ठीक है। सो आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज आंजनगांव सुरजी, या फिर हाँ आंजनगांव सुरजी, आप देख लो डाइजेस्ट में वगैरह। तो आंजनगांव सुरजी आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका? अमरावती तालुका का डेंसिटी कितना है? मोर देन 400%। अभी आंसर कैसे लिखना है देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका? सो द आंसर शुड बी द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका इज मोर देन 400 पीपल 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरा लिखना है, ये वैल्यू भी लिखना है आपको, पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स को समझना, ठीक है। देन नेम द तालुकाज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो यहाँ लिखा कैसे, 300% पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे ही आपको आंसर में लिखना है। सो 300 से नीचे कौन सा है देखो, यहाँ से देखना है अपने को। तो ये जो भी यहाँ आपको दिखेगा या ये दिखेगा ये दिखेगा, वो सभी तालुका का नाम आपको लिखना है। जैसे ये धामनगांव रेलवे, तिवसा, चंदूर, भाटकुली, देन दिस नंदगांव खंडेश्वर, चिकलदारा, ओके, वरुड़, ये सब आपको लिखना है। यहाँ उसका आंसर है, ये तीनों भी लिखना है आपको क्योंकि लेस देन 300 पूछा है, ओके। देन आइसोप्लेथ मैप, इन यू हैव सीन contour maps and isobar maps in earlier classes. तो पहले आपने देखा होगा 8th standard में. In this map the distribution was shown in the help of lines showing equal values. When distribution of the variable is continuous, the isopleth map is then used to show the distribution. जैसे देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो काउंटूर लाइन यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। अभी देखो ये हमने देखा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तालुका का हमने यूनिक वैल्यू दिया, तो ऐसे ये कुछ वेरिएबल्स के लिए यूज हो सकता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज वी वांट टू शो द टेम्परेचर ऑफ अ रीजन और क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, और वी वांट टू शो द रेनफॉल इन दैट रीजन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो तालुका है उसमें एक ही टाइप का रेनफॉल होता है, एक ही जैसा रेनफॉल होता है। यहाँ कम होता होगा, यहाँ ज़्यादा होता होगा, ठीक है। जैसे भी इस तालुका में, इस तालुका में, इस तालुका में, इस एरिया में एक ही टाइप का रेनफॉल होता होगा, इधर अलग होता होगा। तो
तो हम क्या करेंगे, हमें क्या अभी रेनफॉल दिखाना है तो हम अलग अलग ये तालुका वाइज नहीं दिखा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो रीजन है उसको एक टाइप का वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में एक टाइप का रेनफॉल होता है। सो जो आइसोप्लेथ मैप होता है उसमें ऐसे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का कुछ यूज़ नहीं है, हमें पूरा कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे, जैसे आपने देखा होगा इस मैप में आपको यहाँ तालुकास बना के दिखाया हुआ है, आइसोप्लेथ मैप में ऐसा नहीं है, आइसोप्लेथ मैप में पूरा डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया है, और जहाँ वैल्यू सेम है तो ये पूरा तालुकास का बाउंड्री भी क्रॉस कर रहा है और एक टाइप का वैल्यू हमने दिया है। ठीक है, so in this map the distribution is shown with the help of lines and showing equals. When distribution of a variable is continuous, the isopleth map is used to show its distribution. Continuous उसका वैल्यू दिखा है, जैसे टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, माउंटेन से अगर रहेगा तो रेनफॉल एक्सेट्रा। फॉर दिस मैप वी नीड टू ऑब्टेन द एक्यूरेट डेटा रिगार्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट, कितना ऊंचाई पे कुछ जगह है, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ये काउंट बार बार कैलकुलेशन बार बार उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि उस एरिया में टेम्परेचर कितना है, उसके बाद उसका एवरेज निकालना पड़ता है। सेम इज विद रेनफॉल, रेनफॉल को काउंट करना पड़ता है कितना रेनफॉल होता है, और बाद में उसका एवरेज निकालेंगे हम। फॉर सम प्लेसेस इन द रीजन इट इज अज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ और रेनफॉल ऑफ टू प्लेसेस चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे देख मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट का पूरा निकाला है हमने, पूरे अमरावती का, यहाँ इसमें हमने यहाँ छोटे छोटे तालुकाज नहीं बनाए हैं, क्योंकि तालुकाज में ऐसा बोल नहीं सकते कि ये एक तालुका में एक ही टाइप का रेनफॉल होगा, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, टेम्परेचर का भी वैसे ही है। स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू रेस्पेक्टिव प्लेसेस, सच डेटा इज शोन इन द पॉइंट रिलेटेड डेटा। जैसे हम क्या करेंगे, इस प्लेस का रेनफॉल देखेंगे, इस प्लेस का रेनफॉल देखेंगे और यहाँ का देखेंगे, जहाँ सेम आ रहा है तो वो लाइन से जोड़ देंगे उसे। जैसे आपको दिख रहा है 900, यहाँ भी सेम टाइप का रेनफॉल होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो हमने क्या किया, सेम एरियाज़ को 900 समझ के यहाँ लाइन बना के जोड़ दिया। तो मतलब इस एरिया में ये जो प्लेस है इसमें पूरे प्लेस में 900 मिलीमीटर्स का रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एनुअल मतलब पूरे साल में। सेम देखो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 1300 मिनिमम मिलीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि ये पूरे एरिया में, इतने पूरे एरिया में उतना रेनफॉल हो रहा है, तो उसको हमने कलर का शेड दिया हुआ है। और ये डिफरेंस बताने के लिए दो रीजन में, तो यहाँ एक लाइन यूज़ किया हुआ है और वो लाइन को वैल्यू दिया है। ठीक है, देन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर रिटन ऑन द मैप एट द रेस्पेक्टिव लोकेशन। इफ द मैप फॉर मोर प्लेसेस इज अवेलेबल, मैपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन मोर एक्यूरेटली। तो पूरा डेटा ज़्यादा अगर होगा तो उसको एक्यूरेटली हम लोग बता सकते हैं। जैसे आपने दिख रहा है कि यही वैल्यू दिया हुआ है 1300, 1200, 1100, 1000 वैल्यू दिया हुआ है, तो एक एक लाइन को वैल्यू दिया, मतलब क्या, ये जो एरिया है इस एरिया में 1200 टू 1300 मिलीमीटर्स के बीच में रेनफॉल होता है। ठीक है, इसमें 1300 से ज़्यादा। So, on the basis of the information, isopleth maps are prepared using the steps by considering the highest and the lowest value of a variable. तो सब में आपने देखा था highest value कितना है, lowest value कितना है देखना पड़ता है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने लाइन्स हमें बनाने हैं, कैसे मार्क करना है। क्लास इंटरवल मतलब क्या, दो जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना है। जैसे आपको यहाँ अगर दिख रहा है तो डिफरेंस हमने कितना रखा है, 100 का रखा है। ठीक है, तो ये 100 क्या है, क्लास इंटरवल, मतलब दो वैल्यू के बीच में का डिफरेंस, दैट इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेथ मैप विच इन टर्न डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द लाइन। तो दो डॉट में डिफरेंस कितना है, 100। लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स, लोकेशन विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय द लाइन। तो सेम जहाँ वैल्यू सेम है उसे हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ भी 900 है, यहाँ भी 900 है, यहाँ भी 900 है, तो उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ 900 है, यहाँ 900 है, तो ये पूरा हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 800 है, ये पूरा जो एरिया है जहाँ ये सेम कलर यूज़ किया है, यहाँ पूरे एरिया में 800 मिलीमीटर्स का रेनफॉल होता है। ठीक है, 900 होता है, ये 800 के लिए ये है, ये जो कलर दिया है ये 800 के लिए है। ठीक है, so following conclusions are drawn on the basis of maps prepared in such a way. If the lines are closer to each other, the change in the variable is steep. Steep मतलब क्या, फटाफट चेंजेस होते जा रहा है। जहाँ लाइंस के बीच में डिफरेंस अगर कम है तो उसका मतलब क्या, यहाँ चेंजेस, जैसे आपको दिख रहा है रेनफॉल फटाफट चेंज होते जा रहा है, वैल्यू चेंज होते जा रहा है। यहाँ डिफरेंस कम है, डिफरेंस जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ जेंटल धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ रेनफॉल ऐसा नहीं कि फटाफट, यहाँ देखो आपने देखा रहेगा यहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, कम है, उससे फटाफट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एकदम ज़्यादा है। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ देखो पूरा वैल्यू सेम दिख रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेनफॉल में डिफरेंस नहीं होते आ रहा है।
जेंटल स्लोली डिफरेंस हो रहा है, यहाँ डिफरेंस क्या है, स्टीप है, बहुत फास्ट हो रहा है। स्टीप मतलब फास्ट, जेंटल मतलब स्लो, ठीक है। सो वी गेट एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है हमें कि कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है। सो वेरिएबल का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है। यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल है रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये वेरिएबल है। इसमें हमने क्या देखा था, वेरिएबल था डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ क्या था, पॉपुलेशन था, सॉरी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन वेरिएबल था। तो हर एक वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें क्या हमने डॉट नहीं दिखाया, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं काउंट कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी काउंट कर रहे हैं। कितने लोग रहते हैं वो काउंट नहीं कर रहे, हमने क्या किया, डेंसिटी काउंट किया। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में एक हमने स्क्वायर बनाया, एक यहाँ सबका साइड का कितना लेंथ है 1 किलोमीटर, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ 400 रहते हैं। तो ये सब वैल्यू, ये सब वेरिएबल्स है, ओके। आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। We get an idea of the natural trend of the distribution of variable with the help of this map. The rainfall map of Amravati district is given. Read the following maps in detail and answer the question. Which part of district is the rainfall more? Rainfall कहाँ ज़्यादा है, देखो यहाँ नॉर्दर्न साइड, यहाँ rainfall ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। Then in which direction is the rainfall decreasing? Rainfall decrease कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में ज़्यादा रेनफॉल है, साउथ में कम है, तो नॉर्थ टू साउथ, या फिर आप यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ भी है, वेस्ट टू ईस्ट भी है। ये आप चेक कर लो, जो आंसर्स में मैं सब समझा रहा हूँ आपको, आंसर्स अगर आपको देखना है तो आप डाइजेस्ट में या फिर कोई भी आप रेफरेंस बुक देखते हो उसमें रिफर कर सकते हो। देन व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट? लोएस्ट कितना है, 800 मिलीमीटर्स एवरेज रेनफॉल। हाईएस्ट कितना है, 1300, ठीक है। मैप में ही देख के आंसर करना है, कहीं याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझ में आना चाहिए कैसे फाइंड करना है। यहाँ हमने कोल्हापुर, यहाँ उन्होंने कोल्हापुर का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच टाइप ऑफ मैप इज दिस? दिस इज क्लोरोपेथ मैप, दिस इज आइसोप्लेथ मैप, ठीक है। यहाँ रेनफॉल दिया हुआ है कोल्हापुर का। तो क्वेश्चन देखो, इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग? पॉपुलेशन का डेंसिटी कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? अभी कैसे फाइंड करेंगे, देखो जहाँ वैल्यू कम है, ये जो डॉट डॉट है इस एरिया, यहाँ देखो यहाँ डॉट डॉट है, डॉट है, डॉट है, डॉट है, मतलब इस एरिया में डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब क्या है, ये कौन सा साइड है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यहाँ दिया है देखो, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, यहाँ ऊपर नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ है। तो पॉपुलेशन कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वेस्ट से ईस्ट। सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द तालुकास विद पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200। सो यू हैव टू आंसर नाउ। यहाँ देखो ये वैल्यू है, ये 200, लेस देन 200 का है, तो ये कहाँ है देखो। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, दैट इज चंडगढ़ एंड आचरा, गगन बावड़ा एंड शाहूवाड़ी। यहाँ 200 से कम है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 200 to 400। 200 से 400 आप देखो, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ये गारगोटी, ठीक है, राधानगरी, ये उसका एग्जाम्पल है। बाकी मोर देन 400 ये सब है, सिलोई, हाथकरंगले, पन्हाड़ा, कोल्हापुर, ठीक है। आप इसमें चेक कर लो, या कागल कोल्हापुर, ये आप चेक कर लो, ठीक है। करवीर तालुका। नेम द तालुकास विद पॉपुलेशन डेंसिटी 400। इन विच डायरेक्शन ऑफ द तालुकास हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये कोल्हापुर के ईस्ट में है। सिरोल, हाथकरंगले, ये सब क्या है, ईस्ट में, ठीक है। देन विच मेथड इज यूज? तो कौन सा मेथड? ये है क्लोरोप्लेथ मेथड। यहाँ जो मेथड है वो है आइसोप्लेथ मेथड। यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो देखो, यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पॉपुलेशन कम है वेस्ट में, ईस्ट में ज़्यादा है। अगर आप इस मैप में देखोगे, यहाँ क्या दिया है, रेनफॉल। तो रेनफॉल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 2400 का वैल्यू दिया है, यहाँ 600 का वैल्यू दिया है, या 1200 है, या 1800 है। मतलब क्या है, 2400 ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ वेस्टर्न साइड में कोल्हापुर में रेनफॉल ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड में रेनफॉल कम है, ठीक है। Which direction is the rainfall more in the district? So more rainfall is more in the west. Which direction? In which direction is rainfall decreasing? So rainfall is decreasing from west to east. Then which class shows low rainfall category in the district? तो rainfall low वाला कौन सा है? 600 वाला है ये. Then high rainfall कौन सा है? ये 2400. Which method is used? So ये कौन सा मेथड है?
आइसोप्लेथ मेथड है। प्लीज़ एक बार जाके जो भी आंसर्स बता रहा हूँ ये आपके रेफरेंस बुक में कंफर्म करो, उसके बाद ही वो देखो। मैं आपको सिखाने के लिए जो भी आंसर्स है वो बता रहा हूँ, 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहाँ नंदुरबाव का मैप दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कहाँ माउंटेन है वो हमें देखना है, रिवर कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ है, ये सब हमें देख के ही वो डॉट वगैरह वो सब प्लेस करना है, ठीक है। ये यहाँ से देखो रिवर जा रहा है, तो ये जहाँ रिवर है वहाँ हमें डॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। या माउंटेन है सतपुड़ा माउंटेन, वहाँ नहीं माउंटेन डॉट लगा सकते, तो जहाँ चेक करना पड़ता है डॉट वगैरह लगाने के टाइम, तो ये आप उस हिसाब से डॉट मेथड का मैप बना सकते हो। ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, बना के देखो। यहाँ उन्होंने पॉपुलेशन दिया हुआ है, जैसे जो भी तालुकाज है उसका पॉपुलेशन दिया है, और एक डॉट का वैल्यू उन्होंने बोला है 10,000 रखो, तो उस हिसाब से कितने डॉट्स आते हैं इसको डिवाइड करो। जैसे देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो 2,15,000 पॉपुलेशन है, तो यहाँ अराउंड 21 डॉट्स आएंगे, 22 डॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। 22 डॉट्स आप बना सकते हो दिखाने के लिए पॉपुलेशन। एक रफ आप एज्यूम करो, एग्जैक्ट पॉपुलेशन आपको नहीं मिलने वाला है, मतलब जहाँ देखो यहाँ 10,000 है या 1,89,000 है, ठीक है। तो यहाँ 1,90,000 तो पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं होगा, तो हमें रफली हम कितना बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं हम 19 डॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ 13 डॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2,31,000 है, यहाँ 23 डॉट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक डॉट का वैल्यू है 10,000, ठीक है। तो ऐसे आप मैप बना के कर सकते हो। यह कैसे करना है ये सब बताया उन्होंने, आपके पास टाइम है, अगर आपको ये ड्रॉ करने आता है तो ये सब बना के आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर चैप्टर भी है, जोग्राफिकल फील्ड विजिट। जैसे हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पिकनिक के लिए कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। साइंस से अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो हम लैबोरेटरी में जाते हैं। जोग्राफी अगर हमें सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ जाके विजिट करना पड़ेगा। कि जैसे मैंने मैप में देखा था कि कहीं एरिया में डैम है, तो डैम के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, हम वहाँ जाके स्टडी करेंगे। तो जो भी जोग्राफी के लिए हम विजिट करते, कहीं जाके चेक करते, रिसर्च करते, सो दैट इज़ कॉल्ड एज जोग्राफिकल फील्ड विजिट। फील्ड में जाके विजिट कर रहे हैं, वहाँ जाके चेक कर रहे हैं। सो फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट स्टडी इन जोग्राफी। जोग्राफिकल कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस, हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि महाराष्ट्र में सह्याद्री माउंटेन यहाँ है, मैप में तो हमें पता है, लेकिन जब भी हम विजिट करेंगे सह्याद्री में तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे, ठीक है। वी कैन एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू फील्ड विजिट्स। फील्ड विजिट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट। जब भी हम विजिट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ह्यूमन बींग्स और एनवायरमेंट का क्या कनेक्शन है, को रिलेशन क्या है, ये सब चेक कर सकते हो। जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो या कहीं विजिट के लिए जाते हो तो भी आप नेचर के पास जब भी जाते हो, नेचर में जाते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब पता चलता है हमें को रिलेशन क्या है। प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड विजिट। फील्ड विजिट जाने से पहले क्या, कल मैंने डिसाइड किया चलो कोल्हापुर जाना है, वहाँ के माउंटेन्स में घूमना है, तो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे करना है देखो, बिफोर गोइंग टू फील्ड विजिट डिसाइड द प्लेस एंड पर्पस ऑफ द विजिट। क्यों जाना है, हमें क्या रिसर्च करना है, पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। सो वी हैव टू डिसाइड द प्लेस एंड पर्पस ऑफ द विजिट। द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड। कौन से एलिमेंट्स हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, क्या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो डिसाइड करना पड़ता है। स्टडी द लोकेशन ऑन इन द रूट मैप, वी शुड नो द रूट। because of Google Map it is very easy to go from one place to other। ये थोड़ा पुराना दिया है इन्होंने कि चेक करना पड़ता है कि कौन सा रूट कन्वीनियंट है। जैसे कोल्हापुर जाने के लिए 2-3 रूट अवेलेबल है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि सबसे अच्छा रूट कौन सा है, सबसे जल्दी अच्छे रोड्स कहाँ हैं, वो सब हम चेक करेंगे। स्टडी द लोकेशन मैप एंड द रूट मैप ऑफ द प्लेस ऑफ अ विजिटेड। डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन ऑफ द फील्ड विजिट, कितना टाइम जाना है, पूरा प्लान करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ टीचर स्टूडेंट शुड प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है कि हमें वहाँ जाके क्या एंजॉय नहीं करना है, कुछ स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस होता है उसे क्वेश्चनियर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर वहाँ जाके हमें ढूंढना है। सिलेक्शन ऑफ अ स्टडी एरिया। जोग्राफिकल फील्ड विजिट इज ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक फिजिकल लैंडफॉर्म। फिजिकल लैंडफॉर्म मतलब क्या, माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर, ठीक है, रिवर बैंक, डैम, कोस्टल एरियाज, टूरिज्म साइट्स, ऑफिसर्स ऑफ म्यूजियम रिलेटेड टू जोग्राफिकल एलिमेंट। जहाँ जोग्राफिकल एलिमेंट रखा होता है, जोग्राफिकल चीज़ें रखी होती है, उस म्यूजियम में भी हम विजिट करते हैं। देन विलेज में भी जाते हैं, वहाँ पंचायत का ऑफिस होता है, वहाँ जाके चेक करते हैं। फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं। एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर स्टडिंग द लोकल कंडीशंस एंड नेसेसरी लेटर्स हैव टू बी ऑब्टेन। भी कहीं आपको डैम में जाना है स्टडी करने के लिए, तो पहले उस ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ता है कि हम वहाँ आ सकते हैं क्या, ठीक है। ये सब पहले आएगा जाने से
देन फॉर अ फील्ड विजिट यू शुड कैरी अ नोटबुक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फील्ड विजिट के लिए कौन से चीज़ें हमें चाहिए। सो यू कैन कैरी अ नोटबुक फॉर राइटिंग डाउन, फॉर नोटिंग डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। स्पेसिफिक क्वेश्चनियर, स्पेसिफिक क्वेश्चनियर मतलब क्या, आपके पास एक क्वेश्चनियर होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए कि क्या आपको क्वेश्चंस वहाँ पूछने हैं। सपोज कहीं आप डैम में जा रहे हो विजिट करने के लिए, तो वहाँ कोई ऑफिसर होता है तो उससे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपके पास रेडी होना चाहिए। तो उसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उसे क्वेश्चनियर बोलते हैं। देन वी शुड हैव पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, टेप सब होना चाहिए। कंपास आपको पता होगा कि डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। और बैग फॉर कलेक्टिंग सैम्पल्स, कि आपको पता चला कि आपने कहीं पढ़ा है कि महाराष्ट्र में किसी एरिया में ब्लैक सॉइल है, ठीक है, आपको पता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ है, लेकिन ये सिर्फ मैप पे पता है आपको, सुन के पढ़ा है आपने। अगर आपने डिसाइड किया कि वहाँ जाना है, यू आर गोइंग देयर, ओके, देन यू आर विजिटिंग दैट प्लेस, देन यू कैन सी दैट द सॉइल इज ब्लैक। So for your research, for your studies, you can collect that soil and you can come with, you can take that soil with you. So you should have some bag or something. So you should have some collecting samples to collect the samples. Map, you should carry a map of that region. अभी तो मोबाइल पे देख सकते हो आप, पहले मैप कैरी करना पड़ता था। कैमरा, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, हमारा फोटो नहीं खींचना है, उस जगह का फोटो खींचना है। ओके, सो कैमरा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Now precautions to be taken during field visit. It is very important to ensure safety of ourselves and other during field visit. तो कहीं अगर माउंटेन में जा रहे हो आप स्टडी करने के लिए, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर मस्ती सब नहीं करना है। यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स। यू शुड नॉट गो टू अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। You should try to understand the local circumstances by conversing with local people. तो कहीं भी आप जा रहे हो तो वहाँ के लोकल लोगों से बात करोगे तो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लोकल सर्कमस्टांसेस, लोकल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, यू कैन अंडरस्टैंड। यू शुड ऑल्सो इंश्योर दैट यू शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट। कि आप कहीं जा रहे हो विजिट करने के लिए, आपने खाने स्नैक्स कैरी किया था, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स थे आपके पास या वाटर बॉटल था, वहाँ जाके आपने फेंक दिया सब, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट ख़राब करोगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप जा रहे हो वहाँ खाने के लिए सब लेके जा रहे हो, तो वहाँ डर्ट नहीं करना है। आपके पास वेस्ट अगर होगा तो आप वापस कैरी कर सकते हो अपने पास, और कहीं डस्टबिन मिला तो वहाँ फेंक सकते हो। यू शुड ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स, कहीं अगर किसी को चोट लगा तो फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ हो सकता है, ठीक है। देन रिपोर्ट राइटिंग, अगर आपने वहाँ जाके विजिट किया, स्टडी किया, सब कुछ किया, तो उसके बारे में लिखना चाहिए ना हमें कि क्या हुआ, क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कैसे रिपोर्ट में लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे उसका। द फील्ड रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑन अ बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द विजिट इन कंप्लीट यूजिंग द फॉलोइंग इशूज टू मेक अ रिपोर्ट। एड फोटोग्राफ्स अगर आप दोगे तो, जैसे आपने बोला कि आई हैव ऑब्जर्व दैट द सॉइल इन दैट एरिया इज ब्लैक, ठीक है, तो अभी जो स्टडी करेगा रिपोर्ट, उसे अगर आपने फोटोग्राफ भी दिखाया कि ये ब्लैक कलर का सॉइल ऐसे दिखता है, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, तो फोटोग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग अगर करना है तो कैसे, देखो, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लोकेशन मैप, रूट मैप, कैसे आप वहाँ गए वो सब लिखना चाहिए। फिजियोग्राफी की, वहाँ फिजियोग्राफिक कंडीशंस कैसे है, माउंटेन्स है क्या, रिवर है क्या, वो सब। क्लाइमेट कैसा है वहाँ, क्लाइमेट कैसे आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने स्टडी किया हुआ तो पता चलेगा, या फिर आप कहीं वहाँ जाके ऑफिसर से बात कर रहे हो, या फिर वहाँ जाके लोगों से बात कर रहे हो। उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या वहाँ, उसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते हो आप। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड कैसे यूज़ हो रहा है, अगर किसी विलेज में आप जा रहे हो तो वहाँ अगर आपको पता चला कि यहाँ जितना भी विलेज में लैंड है उसमें से कितने लैंड पे एग्रीकल्चर होता है, कितने लैंड पे कुछ नहीं हो रहा है, ओके, ये सब स्टडी कर सकते हो आप। और आपका क्या कंक्लूजन है, ये आपके रिपोर्ट में होना चाहिए। ऐसे हर एक टॉपिक के आप, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि राइट अ रिपोर्ट ऑन विजिट टू अ फैक्ट्री, शुगर केन फैक्ट्री, तो शुगर केन फैक्ट्री में आप गए, वहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सब आप लिख सकते हो। विजिट टू अ डैम, तो डैम के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। I hope this chapter is I hope you have understood this chapter. If you have understood, please share this video with your friends and please subscribe for more videos. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the updates regarding new videos. Again, thank you for watching and keep subscribing.